Hello everyone, hello dear students, very good evening. I am Chartered Accountant Pawan Gahukar and let's get over the mock test paper discussion for EIS, Enterprise Information System, for October 2020 and which was supposed to be important for November 2020 exams. So guys, I've gone through the paper, I've analyzed the paper. To be honest, the paper is very easy. To be honest, the paper is very easy. Yeah, of course, you need to be thorough with the subject. Also, there's a lot of fuss around कि सर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है. मॉक टेस्ट पेपर ने ये सब हमें फाइनल कर दिया है. EIS की करिकुलम में we have information system, the very first chapter. We have ABP, the second chapter. We have e-commerce and emerging technology as the third chapter. CBS as the fourth chapter, and financial and accounting system. They have discussed ERP here more. These are the 5 chapters. और हमने हमारे क्लासरूम सेशंस में इसको we have jotted down to 9 lectures. हम लोगों ने इसको 9 lectures में 9 chapters में कन्वर्ट किया है. So डायरेक्ट 1-to-1 मैच नहीं होगा, बट हाँ अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में से अराउंड 13 मार्क्स का पेपर आया है मॉक टेस्ट पेपर में. ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में 10 मार्क्स. ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से 19 मार्क्स बिकॉज दीज आर 2 चैप्टर्स मर्ज्ड इनटू 1. देन वी हैव कोर बैंकिंग सिस्टम्स which was to my utter surprise only asked for 5 marks, having got so much of things to study under CBS, and financial and accounting system, that is more of ERP, 12 marks. So roughly all the weightages are good enough. I feel CBS से एक और 5 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन बनता था. Nevertheless, let's get going with this. Guys, shall we start the discussion? I hope you have gone through the mock test paper. Did you by any chance? All right, I just hope you did. All right, so guys, एक case study है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. Fit and Fine is one of the renowned gymnasium in South Delhi, established in 2016. The gym is very famous for its health services, latest equipment, cordial environment and experts. The Fit and Fine gym manages its excellent arrangement for its customers as well as employees. A dietitian and a physician were also associated with the gym during the gym timings 5 a.m. to 10 p.m. all the days. On the occasion of Diwali in 2019, the gym also launched online Fit and Fine gym aggregator service. Okay, aggregator service, I hope you know what do you mean by an aggregator. Just like Zomato, Swiggy, they are the aggregator for food, hotels, restaurant and customers. Okay, just like that, they have started an online Fit and Fine gym aggregator service application to reach out and get connected to more customers through various gym located in West Delhi and North Delhi. For its new e-business, as an online gym aggregator, Fit and Fine entered into various electronic arrangements with many other gyms in West Delhi and North Delhi, prescribing the specific terms and conditions. All these gyms associated with FNF are required to provide fitness related best services to its customers. The services of various associated gyms can be availed by the customers either through gym aggregator service application or through physical visit at the registered gym with a one-time membership of ₹3,000 and get unique membership ID PIN. To avail the facilities, the member can either book his physical visit or online session with any of these registered gyms associated with Fit and Fine using the membership ID. So that's what they have given. Okay, it is a case study based question and I think this is very simple to understand. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. अब now we took roughly 3 minutes to read this case study. आप लोग भी इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. आप लोग ये केस स्टडी पढ़ने के लिए, समझने के लिए 3 से 4 मिनट के ऊपर नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा. ऑल्सो ठीक है, जो पहले 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं उसमें आपने ये सब केटर करके रखना है. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. दो Fit and Fine gym and other registered gyms have excellent arrangement for health and safety for its employees, yet the management of gym remains concerned
the management of gym remains concerned about any negligence that may occur and risk that can be exposed it to various fines and penalties posed by any regulatory agency. Which type of business risk is the management here referring to? Can you give me an answer for this? Absolutely correct. They are talking about regulatory risk. कैसे पता चला? Because they are not worried about business. They are not worried about any kind of earthquake, corona or something like that. They are not worried about whether gym will work or not. They are worried about the penalties and fines that may be imposed. And this is where the regulatory body imposes a fine, and they are, of course, they may face a compliance related penalty, and that is covered under regulatory risk. Guys, it's a 2-mark question, and if you have knowledge, it doesn't take more than 15-20 seconds to get this correct. All right, I hope most of you have got it right. Moving on to the second question. The IT team managing the Fit and Find Gym aggregator application manages the MIS report on various parameters like number of bookings for online session, physical meeting done each day, joining of new members per month. Information so extracted through these MIS reports have the following criterion except one. Identify. Yes, the answer, the information MIS report should have the various characteristics, and those characteristics are star. Structured, timely, accurate and relevant. Guys, these three are valid. Confidentiality has nothing to do with this. That's the answer. लेकिन ये confidentiality इशू हमने इतनी बार पढ़ा होता है कि स्टूडेंट यही नहीं सोचता है कि ये क्वेश्चन कौन सा पूछा है, और वो कॉन्फिडेंशियलिटी को तो बिल्कुल टिक नहीं करना चाहेगा. सो गाइस अंडरस्टैंड, इफ यू हैव द नॉलेज MIS में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एंड MIS से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कैसी होनी चाहिए, द आंसर इज स्टार. गाइस, अप्लाइड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, आपने जो पढ़ा है उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको प्रेजेंट किया जाता है. स्टे काम, स्टे कंपोज्ड. It is very much doable. Next, Fit and Find Gym provides unique ID and PIN as an access control mechanism to its customers to avail the facilities provided through Gym Aggregator Service app. From the following controls, identify the app control under which specific access control mechanism falls. पहले तो उन्होंने बोला है, first of all they have talked about access control, और access control एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर की डिस्कशन की उन्होंने. सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर? एप्लीकेशन कंट्रोल्स में वी हैव बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल. द आंसर इज बाउंड्री कंट्रोल. करेक्ट. गाइस, इफ यू हैव स्टडीड दिस वेल, फ्री के मार्क्स है ये. these are not questions, these are peanuts and these are for free being served to you कि आओ EIS में स्कोर करो और ले जाओ. ठीक है, 40-50 मार्क. In the purview of each case scenario, in the above case scenario, there is a possibility that any registered gym with Fit and Fine aggregator online service may violate the terms and condition of agreement done between the two. Of course, ऐसा हो सकता है कि जिम या दूसरी जिम या फिर फिट एंड फाइन जिम का जो ऐप है, उन दोनों के बीच में, द ऐप प्रोवाइडर एंड द जिम्स विच वी आर केटरिंग टू, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बायलैटरली हो सकता है कि कोई एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे. तो ये किस टाइप की रिस्क होती है? लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, रेपुटेशन ऑफ एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. सो गाइस, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन नो, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी नो, वी नो जिसके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, वी नो दैट. ठीक है, रेपुटेशन सोचते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी नो. द आंसर इज सी, cancellation of contract, repudiation of contract, cancellation of contract. That's the answer. ठीक है, यहां पे लिखा है गाइस, अगर कोई स्टूडेंट्स EIS पढ़ के भी नहीं जाता है ना, तो CF फाउंडेशन के नॉलेज पे वो ये आंसर सॉल्व कर सकता है. Violate the terms and condition of the agreement, and when you violate the terms and condition of the agreement, you cancel the contract. ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन याद ना आए, ऐसा इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको ऑल ऑफ अ सडन क्लिक ना हो. बट गाइस,
इवन इफ यू आर अंडर प्रिपेयर्ड समटाइम्स यू कैन स्टिल फेच अ लॉट ऑफ मार्क्स. ठीक है, एमसीक्यू तो फोर्टे होता है स्टूडेंट्स का, एम आई राइट? एमसीक्यू में तो हम अच्छा करके आते हैं होपफुली. अब ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, ये डिजर्व करता है 2 या 3 मार्क्स का होने का. ऑफ कोर्स इट इज फॉर 2 मार्क्स. इन द purview of above case scenario, customer can pay its membership fee through credit card to fit and fine. क्रेडिट कार्ड से पे करना है, इसका मतलब क्रेडिट लिमिट का केस आ गया इसमें. आपने कितनी क्रेडिट लिमिट कंज्यूम कर ली है ऑलरेडी, ये एक इशू आ गया. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Which risk is being taken care in case of banking system key control is established? That transaction, guys, important चीज पे आ जाए हम लोग. Transaction cannot be made if the aggregate limit of outstanding amount, if the aggregate limit of outstanding amount exceeds the credit limit assigned to the customers. ठीक है guys, एग्रीगेट लिमिट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट लिमिट. आपकी क्रेडिट लिमिट थी 1 लाख रुपए और आपने 95,000 यूज कर लिए. अब आप पे करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पे करना चाहते हो 10,000 रुपए, लेकिन आप लिमिट एक्सीड कर जाओगे. ठीक है, सो यहां पे रिस्क कौन सी है? विच रिस्क इज टेकन केयर इन केस द बैंकिंग सिस्टम की कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड? द आंसर इज द क्रेडिट लाइन सेटअप इज, ये प्री क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लाइन सेटअप इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन द लाइन विद द बैंक्स पॉलिसी. एक बंदा डिजर्व नहीं करता, उसके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से उतना क्रेडिट लिमिट डिजर्व नहीं करता, फिर भी आपने दे दिया. पॉइंट नंबर ए. हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो सकता है क्रेडिट लाइन सेटअप कैन बी ब्रीच्ड. तो अगर आपके पास लिमिट है 1 लाख रुपीस की और आप 1,05,000 पे कर रहे हो, तो क्रेडिट लाइन सेटअप ब्रीच होने का रिस्क है. दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. उसके बाद फिर भी सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. हमेशा आप चारों ऑप्शंस पढ़िए. समटाइम्स इट मे हैपन दैट 2 आंसर्स मे बी करेक्ट एंड वी हैव टू सिलेक्ट अ बेटर आंसर आउट ऑफ द 2. मास्टर डिफाइंड फॉर द कस्टमर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट. प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट का कोई लेना देना ही नहीं है क्रेडिट कार्ड के केस में. एंड इनएक्यूरेट रिकंसिलेशंस परफॉर्म. गाइस, टोटली इररिलेवेंट ऑप्शंस. द आंसर इज बी, क्रेडिट लाइन सेटअप कैन बी ब्रीच्ड. आप क्रेडिट लाइन जितना आपको क्रेडिट दिया है उससे ज्यादा आप पे कर रहे हो. दिस इज अ बिग रिस्क दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. सो गाइस, दैट्स इट. द केस स्टडी इज ओवर इन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स. और 5 क्वेश्चन सॉल्व करके यू हैव ऑलरेडी गॉट 10 मार्क्स. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी गई भी होगी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में, तो मुझे लगता है कि वो क्रेडिट कार्ड के क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा एक चांस है गलती होने का. रेस्ट 4 क्वेश्चंस आर वे टू इजी. मैं सच्ची बता रहा हूं, ये मॉक टेस्ट पेपर है जरूर, बट आई डोंट एक्सपेक्ट द पेपर टू बी सो वेरी इजी. ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, तो इतने आसान नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस. यार हम लोगों ने इतने ज्यादा पढ़ाई करी है, इतने आसान क्वेश्चंस तो आने नहीं चाहिए. नेवरदलेस देख लेते हैं. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन policies, procedure and planning. Come on, tell me, what do you think is the answer? Information system that deals with organizations, policies. Guys, physical control है ही नहीं, access control ये है ही नहीं, डिस्कस ही नहीं कर रहा उसकी. environmental control, temperature, humidity, इसकी तो बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे. This is totally यार management control. Is it not free के marks? Tell me, be honest. गाइस, इससे इजी अगर ये आ गया ना, ये मॉक टेस्ट पेपर आ गया ना, तो तुम लोग खा जाओगे उस पेपर को. नेक्स्ट, मिस्टर नीरज इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ केयर सिस्टम वेयर ही हैज टू परफॉर्म डेटा माइनिंग ऑन डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स ऑफ लास्ट 5 years in ABC hospital. The hospital provided him with inconsistent data with lots of errors and missing values. He has to apply various techniques to get rid of these anomalies. Identify the following process which he can use to get rid of these anomalies. Guys, डेटा सिलेक्शन, डेटा सिलेक्टेड है तो ये आंसर तो गलत है. डेटा इंटीग्रेशन, ये भी आंसर गलत है. ट्रांसफॉर्म अभी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं. पहले डेटा पहले साफ तो कर लो. द आंसर इज डेटा क्लीनिंग. Get rid of errors. Getting rid of errors is data cleaning.
Next question is a cakewalk. Mr. X and Y are employees of XYZ Limited in the office during lunchtime. Mr. Y was not on his seat. Mr. X stole the pen drive of Mr. Y containing some confidential information. 66B मुझे नहीं लगती, तो मैंने तुमको क्लास में लर्न करवाया था ये, ठीक है. सेक्शन 66B, सेक्शन 66B, अगर आप कोई भी डिवाइस या फिर कंप्यूटर रिसोर्स आप चुरा लेते हो तो सेक्शन 66B, ठीक है, पेन ड्राइव का केस इसमें आएगा. एंड व्हाट इज 66C अबाउट बाय द वे? Identity theft. Wonderful. And what is section 66D about? Impersonation. ठीक है, जिसको याद नहीं रहता है, impersonation, हाँ, masquerading, impersonation, या फिर 66D दूसरा चेहरा, याद रखना, D दूसरा चेहरा. सेक्शन 43 ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है इन सब चीजों से. 43 इज द बेस की ऑफेंसेस कौन से होते हैं आईटी एक्ट के अंदर. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग? Which of the following is not true about cloud computing? देखना पड़ेगा ये तो. Data and information can be accessed with minimal upfront spending in pay as you go approach. So it is true. Getting more work done in less time with less resources. This is also very much true. And customers may have to face restriction on availability of app, OS and infrastructure options. देखते हैं इसको. It is feasible to confine within the budgetary allocation and can be ahead of completion cycle times. आप अपने हिसाब से, एक मिनट, पहले दो पॉइंट्स तो ट्रू है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए. क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने हिसाब से रिसोर्सेज रेंट पे ले सकते हो, राइट? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब जैसे अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए लैपटॉप लेना था, तो एकदम से मिल गया कि लैपटॉप एक दिन में, पापा अभी लैपटॉप चाहिए, ठीक है बेटा आधे घंटे में लो लैपटॉप. नहीं होगा ऐसे, 2 3 5 दिन 10 दिन जाएंगे उसमें. क्लाउड कंप्यूटिंग में कस्टमर विल नॉट फेस रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन. कोई नहीं, सब प्रोवाइड कर देंगे वो, बस आप रेंट भर देना. करेक्ट है ना? क्या भर देना? रेंट आपको पे करना पड़ेगा. द आंसर इज सी. दिस इज नॉट ट्रू अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग में हर चीज मिलती है. बताइए, हर चीज मिलती है. हाँ, ऑन डिमांड. पलक, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज ऑन डिमांड. ठीक है. वैसे क्वेश्चन ऑन डिमांड का क्वेश्चन कहां से हमने लाया ये पॉइंट? टेल मी द क्वेश्चन प्लीज. Characteristics of cloud computing. The answer is multi-power. Do you remember? Multi-power, yes. Okay. इतने we have studied 9 MCQs till now. रिस्क पे कितने क्वेश्चंस आए अब तक? रिस्क पे कितने क्वेश्चंस आए अब तक? एक. वन वी हैव विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. रिस्क पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, रिस्क पे दूसरा क्वेश्चन. एंड दिस इज द वेरी रीजन कि क्यों मैंने रिस्क मैनेजमेंट को एक अलग से चैप्टर बना दिया अपने नोट्स में. दिस इज द वेरी रीजन. ठीक है. नेवरदलेस, या दिमाग लगाते हैं. द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट इज फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ इंपैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी of risk is very low. Which type of risk management strategy would be followed? When the impact and probability of risk is very low, we do not treat it. No control supplied. We do not share the risk. No. We do not terminate the risk. Tolerate. Your answer is correct. ठीक है, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, तुमको आएगा आंसर. That's not a big deal. मेरा टेल मी, ये कोई एग्जाम्पल दो यार, कोई ऐसी रिस्क का जिसका ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क काफी कम हो. जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क काफी लो. अर्थक्वेक, सुनामी, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क काफी कम होता है और इसलिए हम लोग उसके अगेंस्ट वैसे भी कुछ नहीं करते, सो टॉलरेट कर देते हैं. टर्न बैक कुड हैव बीन अ बेटर आंसर. टर्न बैक कुड हैव बीन अ बेटर आंसर, बट दैट्स नॉट इन द ऑप्शन, सो छोड़ देते हैं उसको. मूविंग अहेड, आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स दैट आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट एरर्स, ओमिशंस और मैलिशियस एक्ट दैट ऑकर एंड रिपोर्ट द ऑकरेंस एंड एक्सप्लेन देम. ओ एक मिनट, कौन से कंट्रोल्स मांग रही है? कौन से कंट्रोल्स मांग रहे हैं? दिमाग लगाओ.
What are the various types of control? The categories of control. The various categories of controls are on the basis of objectives. दूसरा, nature of resources and audit function. ये कौन से ऑब्जेक्टिव पे पूछ रहा है क्वेश्चन? On the basis of the objectives of controls, preventive, detective, corrective. क्या मांग रहा है सोचो? Of course it is talking about detective controls. The main characteristics of such controls are clear understanding of lawful activities, so that anything which deviates from these are reported as unlawful and malicious. An established mechanism to refer the reported unlawful activities to the appropriate person. Interaction with the preventive control to prevent such acts from occurring, and surprise check by the supervisors. There are general characteristics, and there are a few list of the detective controls: cash counts, bank reco, review of payroll reports, monitoring actual expenditure against the budgeted, expenditure profiling, automatic eco control in telecommunication. याद है ना? चेक चेक चेक. एक मिनट, इको कंट्रोल से कौन से एरर चेक होते हैं बताएंगे मुझे जरा? बताओ. इको कंट्रोल्स, हाँ हाँ, लाइन एरर एकदम पढ़ के आया. आई एम सो सॉरी यार, तुम एकदम पढ़ के आए, सॉरी. देन लाइन एरर कंट्रोल, जिनको आंसर याद नहीं आ रहा था, ठीक है, शीतल ने लीक कर दिया. लाइन एरर कंट्रोल, internal audit functions and intrusion detection system. Do you remember the diagram for IDS by any chance? Yes. IDS and firewall, use it to your advantage. उस पे बिल्कुल आता है क्वेश्चन. Next question is define the process of money laundering. Define the process of money laundering. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, तो पहले तेरे 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन है. तो ठीक है, आपको पहले, ठीक है, आपको पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको पहले थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग एल्स बट द प्रोसेस बाय विच द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड ट्रू ओनरशिप ऑफ दोस प्रोसीड्स आर कंसील्ड, दैट द प्रोसीड्स अपीयर टू कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स. आप उसको छुपाते हो ताकि उसको उसका इलीगल सोर्स छुप जाए और लेजिटिमेट सोर्स ऐसा महसूस हो. द objective in money laundering is to conceal the existence of illegal source and illegal application of income to make it appear legitimate. ठीक है, money and laundering is commonly used by criminals to make dirty money appear clean. For the profits of criminal activities are made to appear legitimate. ये आपको बताना है. 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेशन की उम्मीद है बस 2 मार्क्स के लिए. बट देन मुझे लगता है स्टेजेस भी आपने मेंशन. ओ माय माय, कैन यू टेल मी द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? Placement, layering and integration. Achha, tell me what are the parties involved in money laundering? Clients, beneficial owner. और वो कितने साल तक मेंटेन करनी है रिकॉर्ड्स? सर ये आप मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप ये टेस्ट ले रहे हो, ओरल वाला है ना. Next, Mr. X is the chief manager of ABC, a shoe manufacturing company in Delhi. He has put a proposal to the top management to implement ERP system to enhance the quality of production process. The management has asked to prepare a report on how the quality management module. Oh my, एक मिनट पहले तो बताओ क्या ERP में quality management module होता है? हाँ, ये लिखा ये तो होता ही होगा. ठीक है, टू एक्सेलरेट इट्स बिजनेस प्रोसेस. मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि एक मॉड्यूल वो पूछते हैं ईआरपी का, तो आपने वो रेडी करके रखना है. इतना भी एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या करोगे? एवरीडे 1 मॉड्यूल, वेरी सिंपल. ओके, डिस्क्राइब ऑल द पॉइंट्स दैट मिस्टर एक्स में राइट इन रिपोर्ट रिगार्डिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ ईआरपी. देखो अप्लाइड क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन नहीं है. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन व्हाट क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल इज. लेकिन अप्लाइड पूछ लिया, एप्लीकेशन पूछ लिया, परेशान हो जाते हैं हम लोग. रिलैक्स, कोई अप्लाइड वप्लाइड नहीं रहता, सब मैनेजेबल रहता है. बाय द वे, ईआरपी इज अ प्रोडक्ट और ईआरपी इज अ ब्रांड. एंड व्हाट इज एसएपी? So we have SAP quality management module, and it helps in procurement and sales, production planning, inspection, notification, control and audit management.
मेजरली आपके आंसर में आपको क्वालिटी प्लानिंग के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन समझो, आप क्वेश्चन पढ़ो। The management asked him to prepare a report on how the quality management module would help the company to accelerate its business process। तो ठीक है, ये ले लो, प्लानिंग है, कंट्रोल है, अश्योरेंस है, इंप्रूवमेंट है। जब अश्योरेंस आ जाता है तो आपकी गलतियां कम होती है। जब आपकी गलतियां कम होती है तो आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है, बिकॉज व्हेन देयर आर लेसर एरर्स you need lesser time to correct it, correct? And that is why planning, control, assurance and improvement, these would be the points that you have to write in the report and of course in the answer. So these are applied questions. Applied questions are nothing else but direct questions yaar. You just need to read between the lines. Moving on, Mr. G has started his new business of home biscuits and cookies through online mode. Bhook lagi kya re? He has a website having detail of all its product and payment gateway. Identify the different ways which follow to protect his e-business from intrusion। यार वो हैकर वगैरह आ सकते हैं क्या? क्या लगता है तुमको? किसी भी सर्वर्स में मेजर प्रॉब्लम क्या है रे? वायरस है, हैकर्स है, पासवर्ड्स लीक हो जाएंगे, एम आई राइट? हमारा सेंसिटिव डेटा चोरी हो जाएगा, यही मेजर पॉइंट्स है। लिख के रिच पीपल क्रेडेंशियल्स, ठीक है। द डिफरेंट वेज इन विच ओके यू शुड प्रोटेक्ट हिज ई-बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, वायरस, हैकर्स, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर। शुड यू अपडेट द सॉफ्टवेयर? डिड यू अपडेट योर iOS? Very nice. Rich people, regular software update, sensitive data has to be taken care of to the next level, and you should know the details of your payment service provider contract। इसके बारे में ध्यान रखना है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से आजकल? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट, हाँ, पेटीएम, फोन पे, ये सारे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट, एमएक्स, ओके, देखो पूरा अमेरिकन एक्सप्रेस लेके आ जाओ यहाँ पे तुम। Next, the wealth management company DEF Limited has its head office in Bangalore and wants to set up a new office at Mumbai. For the new setup, DEF Limited managerial control are required to be enforced to ensure that the development, implementation, operation and maintenance of IS at Mumbai office is in planned and controlled manner. Determine all the activities that deal with system development management. Oh my. System development management controls that are responsible for function concerned with analyzing, designing, building, implementing and maintaining of information system. गाइस कुछ समझ में आ रहा है? ये सारी स्टेप्स कौन सी है बताओ सर? ये सारी स्टेप्स है एसडीएलसी की, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कौन से कंट्रोल्स मेंशन करोगे बताओ? द आंसर इज मैनेजेरियल कंट्रोल्स। यहां पे आप कोई एप्लीकेशन कंट्रोल्स या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स लगा के कोई फायदा नहीं है। What is the answer? Do you remember? टाइम पास से डरो। The answer is टाइम पास से डरो, ठीक है। क्वालिटी, सिक्योरिटी, बीसीपी पढ़ो, क्यूएसओ पढ़ो, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड बीसीपी एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो गाइस दिस वाज इजी और ये लर्न करना है आपको। कर चुके हो क्या ऑलरेडी, या अगले आइटम का इंतजार कर रहे हो? ये तो अगले बार पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारा प्लान? आई एम सो सॉरी इफ आई डिसअपॉइंटेड यू। The organizations implementing ERP system should keep abreast of the latest tech developments and implementation which are required to survive and thrive, and list all the risks associated with tech aspects of an ERP system। ERP सिस्टम इंप्लीमेंट करते वक्त क्या रिस्क है? पहले छोड़ दो, फॉरगेट द क्वेश्चन। टेल मी व्हाट आर द ERP सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, इट्स रिस्क एंड रिलेटेड कंट्रोल से रिलेटेड 5 रिस्क सिखाइए मैंने। कौन सी? हर्ष जयपुरिया की आवाज क्यों आ रही है मुझे? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, एंड वी आर हियर टू अंडरस्टैंड। उन्होंने टेक्नोलॉजी रिस्क पे क्वेश्चन पूछ लिया गाइस, ये ठीक है, या आउटडेटेड, ब्यूटीफुल। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका ऑब्सोलेसेंस हो जाए, सॉफ्टवेयर फंक्शन करेगा या नहीं करेगा।
जैसे आप अभी हमारा ये ऐप बंद हो गया तो क्या करेंगे हम, करेक्ट? ये ऐप, हम लोग जिस सॉफ्टवेयर पे ये क्लास ले रहे हैं, ये ऐप बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, क्या करेंगे हम? सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी इज अ टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होना इज अ रिस्क इन इटसेल्फ, एनहांसमेंट्स एंड अपग्रेड्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है? और आपको सारी चीजें अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जैसे किसी फोन ने अगर 5 साल से अपने आप को अपग्रेड ही नहीं वो करा होगा, और आज ऑल ऑफ अ सडन वो फोन शुरू करके एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको सारे अपग्रेड्स मिल जाए, मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगा, वो फोन बेकार हो जाएगा। वैसे ही एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कौन से पोर्टफोलियो चाहिए आपको कौन से ऐप चाहिए, आप देखो यार। शुड वी ट्राई टू बाय एवरीथिंग अपफ्रंट, सभी खरीद लो, या बिजनेस इवॉल्व होता है और उसको धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसकी, एम आई राइट? Moving ahead, Mr. Amar runs a grocery shopping center and uses only cash mode for payment of his customers. However, on regular demand, he wants to use a digital mode of payment. Also, as a novice, as a newcomer, he worries about the security and hassles involved in digital mode of payment as well. And oh my, इतनी सारी कहानी बताई और ये एकदम से उन्होंने दे दिया। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया यहाँ पे। Enlist advantages and disadvantages of digital mode of payment for him and to make it better understand. तो बताओ तुम यार advantages and disadvantages of advantages of digital payments is easy and convenient, pay and send money, discount from taxes, written record. Of course, PWD is easy and less risky, followed by the drawbacks of digital payment, difficult for non-technical person, data theft, and doctor do overspending. Now we would like to pay tribute to all the doctors with this small token of appreciation. ठीक है? Next, guys, was it an easy question? Is it even an applied question? Does it even deserve to be called an applied question? नहीं यार, एग्जाम हॉल से बाहर आके सभी अप्लाइड पूछ लिया। अगर तुमको ये क्वेश्चन अप्लाइड करते ना तो तुम हो ही नहीं सीए स्टूडेंट, सॉरी हो तुम वापस। Now, ABC company has an internal control system. It provides reasonable. नहीं, आंसर गलत हुआ है, ठीक है? एज एन इंटरनल, यही जब आ रहा होता है ना तो रुका नहीं जाता हमसे, और एक्साइटमेंट के मारे अनाप शनाप आंसर निकलते हैं। रुको जरा, सबर करो। ABC is having internal control system that provides a reasonable assurance about achievement of ABC objective regarding the reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation. However, the company is not able to achieve its objectives. Write the limitations of internal controls that hinder the success of ABC. ओए, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अप्लाइड क्वेश्चन है भी क्या ये? कुछ नहीं पूछा, बकवास कहानी बनाई और आखिर में क्वेश्चन पूछा कि लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सिस्टम क्या है। डू यू रिमेंबर द आंसर? कुकू, abuse, manipulations of human error, cost of internal control is high, unusual transactions are not covered, collision with the employees, abuse of responsibility, manipulations by management and potential for human error. कैसे? एक और चीज, आपने डायरेक्ट ऑडिट के आंसर्स मत लिख के आना यहाँ पे, तो समझ रहे हो क्या? ओए हेलो, ऑडिट के आंसर मत लिख के आना। हाँ, ऑडिट के आंसर आप कब लिख के आना? जब कुछ भी नहीं आ रहा हो यस का, तब। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यहां पे मैं आपको अलाउ कर सकता हूं, ठीक है? तो डायरेक्ट ऑडिट के आंसर्स को। और व्हाट इज द आंसर फॉर सेराका आईसीएम? व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर सेराका आईसीएम? कंट्रोल एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट। सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? J&J Private Limited wants to start its e-business in India and list the positive impact of IT Act 2000 in pursuit of e-commerce in India that will help J&J Private Limited to promote their business. J&J डाल दिया, ठीक है? E7SD card, yes, that's the correct answer. Positive aspects of IT Act is the first page of IT Act. IT Act हमने एक अलग से चैप्टर बनाया। Do you understand the significance of this? क्वेश्चन कितने मार्क्स का है भाई? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 चैप्टर्स है इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में, 10 मार्क का एक चैप्टर, जिसमें से 6 मार्क का पूछा जा रहा है, आप समझो। और उसमें से एमसीक्यू में भी 1 या 2 मार्क का एक क्वेश्चन दिखा हमें, एम आई राइट? इस रीजन से इसको एक अलग चैप्टर बनाया हमने हमारे नोट्स में। आई जस्ट होप यू
जाने दो, अब मैं क्या भी, और छोटे छोटे चैप्टर से 6-8 मार्क अंदर हो जाते हैं यार, समझो, ट्रस्ट माई प्रोसेस, ठीक है. IT Act has given legal recognition to digital signature as a method of authentication. It recognizes bookkeeping in e-forms. It has granted legal recognition for transaction through e-commerce. It gives legal sanction to electronic fund transfer, electronic storage of data. E-business is given legal recognition, and email bhi use hoga as a means of communication. E-filing with the government department and e-governance is also allowed, and security, it addresses security. These are the positive aspects. These are the positive aspects. E7 SD card is the answer. Okay, learn करके जाना रहे. IT Act, money laundering तो छोड़ना ही नहीं बिल्कुल. And I guess this is the last question of EIS. And of course, today's session, ABC is a newly established financial company that wants to obtain ISO 27001. कभी नहीं सिखाया मैंने तुमको ISO 27001 सर्टिफिकेट, सिखाया क्या कभी? पक्का? आई श्योर? डर जाते स्टूडेंट ISO, ये तो पढ़ा ही नहीं. ISO फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ IT. ठीक है, ISO का कोई लेना देना ही नहीं था बाय द वे, बट ठीक है, उन्होंने बना दिया क्वेश्चन. राइट ऑल द सब प्रोसेस इंक्लूडेड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ये पढ़ा है हमने. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डॉन, इंफॉर्मेशन यूजर ऐप सिक्योर्स डॉन फिजिकली. ठीक है, इट्स एन इजी क्वेश्चन जो मैंने अमेंडमेंट्स के केस में भी करवाया है तुम लोगों को. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो ये बिल्कुल, हाँ, सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का क्वेश्चन है ये. ऑलराइट, सो गाइस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐप सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी and physical security. All right, so that's that about EIS. And I guess, how was the question paper? What's your quote on the question paper? Was it easy or difficult, the mock test paper? It was easy. And मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा easy दिया है, क्योंकि mock test paper है तो कुछ खुशी मिले जिंदगी में. उन्होंने फ्लो चार्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ज़्यादा खुश मत होना कि फ्लो चार्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है. वंस इन अ वाइल फ्लो चार्ट पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, बट अगर फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आया तो वो श्योर मार्क्स है, श्योर. हमको तो आता ही है फ्लो चार्ट सॉल्व करना. ठीक है, ऑलराइट गाइस, जो लोग भी थोड़ा बहुत, ठीक है, सर्टन अनसर्टन सिचुएशन में आते हैं, यू हैव कम वेरी फार. यू आर नॉट क्विटिंग, यू आर नॉट क्विटिंग, यू आर नॉट क्विटिंग हियर. You are giving your best shot. ठीक है, as far as EIS is concerned, guys, I wish you all the best. Just do well, try your luck. थोड़ा कभी कभी अंडर प्रिपरेशन भी होता है, फिर भी try your luck. You can still, okay, do wonders out there. हमने जो अभी पेपर सॉल्व किया है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा हाई एंड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी. अगर आप बिना पढ़ के भी जाते तो 20-22 मार्क्स लेके आते उस पेपर में. गाइस, ट्राई योर गट, ट्राई योर लक, बी ब्रेव एंड बी सक्सेसफुल. ऑलराइट, सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस. कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.